Okay, class, now we are moving to the formal sector credit in India. Look, there is a two kind of the credit systems, the formal and informal. Formal means as you come to your schools with wearing the formal dresses. Okay, so the formal is here in this case very systematic, and therefore the legal entity, those who have the right to give the credits are the banks, cooperative societies. इस तरह से फॉर्मल सेक्टर वो है जिसको कानूनी रूप से लोन देने की आज़ादी है, नियम कानून है, उसको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं और बैंक उसे हम बैंक बोलते हैं. In the last discussions very extensively, those who have responded very well, you understand there are the two kind of the credit systems. The various source of the list as you have written there, there is a two kind of the first is the informal. Informal in case of the story which you discussed there, in case of the informal is the money lender, is the money lender or the who was the another individuals, the landlord employees. But in the source of the formal, we have seen there in the case of to the Arun, that is the bank has given the lesser interest rate, and the another one in the case the cooperative society. So why the formal source is the important, we have very clearly understand through the story of the well is, but now we are going ahead. So through the story we know there is a different source of the लैंडिंग. वन इज़ द फॉर्मल, सेकंड इज़ द इनफॉर्मल. तो अलग अलग तरह के सोर्स हैं उधार देने के, कर्ज लेने के, क्रेडिट लेने के. एक को फॉर्मल और एक को इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक कहते हैं. हमने ऐसा उसमें भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा चैप्टर सेकंड में फॉर्मल सेक्टर. अच्छा, और नहीं, उसमें हमने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पढ़ा था, सॉरी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. मैंने फॉर्मल्स को ब्लू कवर किया होगा और इनफॉर्मल को मैंने रेड, क्योंकि इनफॉर्मल मुझे बहुत खतरनाक लगता है. क्यों लगता है आगे बताऊँगा, आप खुद समझ जाएंगे. इसमें लिखा है कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर ओके. दो तरह का हमने देखा, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल में आता है आपका बैंक एंड कोऑपरेटिव, ब्लू है, अच्छा कलर मान रहे हैं. फॉर्मल को हम बैंक और कोऑपरेटिव है. इनफॉर्मल में कौन आता है, मनी लैंडर्स, traders, employers, relative and the friend, etc. What you have done in the last exercise, so basically what you have done, the things which you got from the exercise, we have classified them into the two categories, the formal and the informal. If the bank and the cooperative society, that consider the formal. If you are taking the lending from or the credit from the money lender, trader, employers, even your relative and the friend, that go to the informal sector. Now look at this graph 1, very important to understand the different sort of lending activities or the credit activity in a country, but the data is the 2020. 2012 maybe the similar sort of trend would be remain now. This one is the formal sector of the bank. 1% the government give directly, 25% the cooperative societies. Lakhs of the cooperative society work in the India. Lakhs of the cooperative society work in our country in a different kind of the cooperative bank. We have Almora Grameen Bank, Kurmanchal Bank. These all are the cooperative societies. And there is a commercial bank, State Bank of India, Punjab National Bank, UCO Bank, SDFC. These all are called to the commercial bank. So 25, that is the formal, 1% the government. So that is the formal sector, 51%. And remaining the 49% is money lender. मनी लैंडर साहूकार जो कर्ज देते हैं ब्याज पे, हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट. एंड यू हैव कंपेरेटिवली डिस्कस की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ दैम. एंड देन वी हैव द लैंडलॉर्ड जो जमीन के मालिक हैं. दिस अदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, वी हैव अदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस. रिलेटिव एंड द फ्रेंड, आपके रिश्तेदार भी आपको उधार देते हैं 8%, और अदर नॉन इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज हैं. सो दैट इज द 49%. तो ये तो अच्छा लग रहा है कि 51% इनफॉर्मल सेक्टर वाले देते हैं और 49% नहीं, 51 फॉर्मल सेक्टर देता है, 49 इनफॉर्मल सेक्टर देता है. लेकिन इसमें भी एक बड़ा यूज़ है, एक बड़ा डिफरेंस है कि किन को देते हैं. उसको हम समझें, उससे पहले हम समझते हैं कि फॉर्मल लैंडिंग और इसके क्या रूल है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सुपरवाइज करता है इस वाले सेक्टर को, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर को. और जैसे एक आपने देखा होगा जब हम बैंक के बारे में पढ़े थे, मिनिमम कैश बैलेंस रखना पड़ता है ना 15%. उसको आरबीआई देखता है. आरबीआई देखता है कि इनने बैंक में ये रखा है नहीं रखा है. जो येस बैंक में प्रॉब्लम यही हुई थी, उनके पास वो मिनिमम बैलेंस ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने लैंड ज़्यादा कर दिया था, पैसा उनके पास रखा नहीं गया था, तो उसके कारण से प्रॉब्लम आई थी और पैसा रिकवरी नहीं हो रहा था. तो येस बैंक अभी लास्ट और रिसेंट बैंक जो अभी सबसे बैंकरप्ट हुआ है. और आरबीआई ये देखती है कि लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही तो नहीं दिए जा रहे हैं ट्रेडर्स को, बल्कि छोटे छोटे किसानों को भी दिए जाने चाहिए. आरबीआई देती है और पीरियोडिकली एक समय के बाद इन सब बैंकों का ऑडिट होता है. अभी ऑडिट कैसा होता है साहब, ये बड़ा इशूज़ है. अगर ऑडिट हो रहा था येस बैंक का, तो आरबीआई के पास क्यों नहीं सही जानकारी पहुंची. अगर ऑडिट हो रहा था पीएमसी बैंक का महाराष्ट्र में, तो उसकी जानकारी क्यों नहीं पहुंची, तो ये भी एक सवाल है. तो ठीक है, ऑफिशियली आरबीआई एक ऑडिट कराता है, आरबीआई के पास ऑडिट जाता है कि किस तरह से बैंक ऑपरेट कर रहे हैं.
देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनको मॉनिटर करने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉमर्शियल बैंक को देखने वाला आरबीआई है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तभी मैंने रेड और बहुत ही डेंजरस प्रोपोजल्स है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दे कैन लैंड व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट दे माइट। जो भी इंटरेस्ट रेट वो चाहें उस पर वो क्या कर सकते हैं, वो उधार दे सकते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम यूजिंग द अनफेयर मीन्स। और जब इनफॉर्मल सेक्टर नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, डंडों से पिटाई कर देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ है कि एक किसान नहीं दे पाया, एक प्राइवेट कंपनी ने उसका ट्रैक्टर ले आया, तो किसान ट्रैक्टर के आगे आ गया तो उन्हें ट्रैक्टर चला दिया, किसान की मौत हो गई। मैंने आपसे क्लासरूम में शेयर किया था। कोई देखने वाला नहीं है वो किस तरह से, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है, किसान गरीब होते हैं तो इतना ब्याज ले लेते हैं कि उसको गलत तरह के हिसाब में उसके कागज़ गलत साइन करा के ज़मीन पे कब्जा करते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज द माइट हायर इंटरेस्ट ऑफ द लैंड। जो फॉर्मल लैंडर होता है, कौन फॉर्मल कौन है, बैंक और कॉर्पोरेट। इसकी तुलना में जो इनफॉर्मल सेक्टर ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है। ये तो आपको पता ही है, पीछे जो गांव की आपने कहानी देखी थी, याद है ना आपको, सोनपुर ब्लेज की कहानी में आपने तो एक्टिविटीज़ में बताया था क्रेडिट रेट के जो टर्म ऑफ क्रेडिट है। तो यहीं पे समस्या होती है कि कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर जो हैं, जो लैंडलॉर्ड है, रिलेटिव्स हैं, ये मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ द इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर। जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट लोन की बढ़ जाएगी। इसका नुकसान क्या होता है, ध्यान से पढ़ना ये है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन्स। अगर आपकी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो क्या होगा, अगर हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इसका मतलब है कि जितनी आपकी आमदनी होगी उसका बड़ा हिस्सा तो सिर्फ आपको जो आपने लोन लिया है, जो उधार लिया है, उसी को चुकाने में लग जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो बोरोवर होता है उसके पास लेस इनकम होती है अपने लिए, जैसा हमने किसके केस में देखा था, श्यामल के केस में देखा था सोनपुर में। और इन सर्टेन केसेस, और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है, मैंने रेड लाइट, ये रेड अंडरलाइन किया है जो हाईलाइट करता है बहुत थ्रेटन प्रोपोर्शंस, कि द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरोइंग कैन मीन्स दैट टू द अमाउंट टू बी रीपेड इज़ ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। तो कभी कभी तो ऐसा होता है जो उधार लेने वाला जितना पैसा लेता है उससे ज़्यादा, या उसकी जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा उसको पैसा देना पड़ता है। जब इनकम से ज़्यादा ही आपको किसी को देना पड़ेगा तो आप कैसे, किसी भी सिचुएशन में आप एडवांटेजेस में होते हैं, और ऐसे में वो किस में फंस जाते हैं, डेट में फंस जाते हैं, कर्ज में। और ये कहानी आपने रामा की कहानी देखी थी। और कोई भी इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्रेडिट आपको पहले भी बताया था ना, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, ह्यूमन रिसोर्स के अलावा कैपिटल। जब उसको कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट हाई देना पड़ेगा, कोई भी इंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं फॉर दिस रीजन बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू बी लैंड मोर। इसीलिए जरूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा लैंड दें। जितना उधार देंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, उतनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतनी जीएनपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आएगी। बहुत ज़रूरी है। तो हम लास्ट में कहते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जिस देश में सस्ता लोन होगा वो उस देश के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लोन मिल किसको रहा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट कहाँ जा रहा है? बस ये आपको तो लग रहा था बराबर है ना, यहाँ पे ये बराबर दिख रहा है, यहाँ 51-49, लेकिन जा किसको रहा है आप देखते हैं। ये 4 सिनेरियो दिखाए गए हैं। जो ब्लू कलर है स्टैंड फॉर टू द इनफॉर्मल लोन, और पर्पल कलर है वो दिखाता है फॉर्मल लोन बैंक का। पर्पल वाला बैंक ये समझ लीजिए, ये है पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग हैं। भारत के गरीबों को सिर्फ 15% बैंक लोन देता है, 85% लैंड बाई टू द इनफॉर्मल सेक्टर। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और इनको जो इनकी कमाई है उस कमाई से ज़्यादा इनको ब्याज देना पड़ता है। तो पुअर विल रिमेन पुअर फॉर एवर। सो दैट इज आवर इकोनॉमिकल पॉलिसीज। क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, गरीबों को क्यों लोन कम दिया जा रहा है, इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाउस होल्ड विद द फ्यू एसेट्स है, जिनके पास बहुत कम हाउस होल्ड है, कम संपत्तियां हैं, हाउस होल्ड में कम एसेट्स हैं, 53% उनको कौन दे रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर, 47% फॉर्मल सेक्टर। इनको भी आधे से ज़्यादा कौन दे रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट पे। यानी आधे लोग कभी गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और वो कभी भी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे वेल ऑफ हाउस होल्ड है आपकी और मेरी तरह लोग, उनको बैंक देता है। वाह कितना अच्छा है, इनको बैंक देता है, यानी कि ये खूब इनकम करेंगे सस्ते चीप लोन से। 72% इनका जो लोन है ये इनको फॉर्मल देता है बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, 28% ये मनी लेंडर वगैरह वगैरह से लेते हैं। और जो भारत के सबसे रिच हैं उनको 90% कौन देता है, उनको बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। 10% इनफॉर्मल से लेते हैं, इनको सस्ता लोन मिलता है, इसीलिए ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। तो आपको देखने की जरूरत है कि आपके देश की इकोनॉमिकल पॉलिसी कैसी है। मोस्ट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल लैंडर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज देयर इनकम ऑफ द बोरोवर। तो जो लोन ज़्यादातर इनफॉर्मल जो लैंडर से लिया, जो हम लेते हैं,
हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो उनकी इनकम कुछ नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं यह जरूरी है कि बैंक एंड द कोऑपरेटिव इंक्रीज दियर लैंडिंग, बैंक और कोऑपरेटिव क्या बढ़ाएं अपनी लैंडिंग को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उधार दें पर्टिकुलरली गाँव में, जिससे कि इनफॉर्मल सोर्स पे गाँव वाले कम डिपेंडेंट हो। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू बी एक्सपैंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दीज लोन। एवरीवन इज नॉट रिसीविंग दिस लोन ना, फॉर्मर सेक्टर लैंड लोन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि एवरीवन, ये लोगों को नहीं मिल रहा है लोन, आपको ये समझने की जरूरत है, इसीलिए डिस्पैरिटीज़ है। तो आपको ये का वर्क करना है, क्या करना है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट, मुझे 4 लाइनों में लिख के बताना है। वाई शुड क्रेडिट एट द रीजनेबल रेट बी अवेलेबल, सबके लिए रीजनेबल मैंने तर्कसंगत सस्ते रेट पे क्यों अवेलेबल होना चाहिए क्रेडिट, क्या एडवांटेज है। शुड देयर बी ए सुपरविजन, शुड देयर बी ए सुपरविजन सच एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट लुक इनटू द लोन एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल लैंडर, क्या कोई ऐसा होना चाहिए जो मनी लैंडर या जो रिलेटिव है इनका जो लोन देने को सुपरवाइज करे, जैसे आरबीआई फॉर्मल सेक्टर के लिए करता है। वाई वुड इट टास्क बी डिफिकल्ट, ये टास्क क्यों मुश्किल है। Why do you think that the share of the formal sector credit is higher than to the richer household, ऐसा क्यों है, ये आपको बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। जो अमीर लोग हैं उनके में जो फॉर्मल बैंक की लोन है वो ज़्यादा क्यों है कंपेयर टू द पुअर हाउस होल्ड, और जो पुअर लोग हैं वो लोग क्यों कम लोन ले पाते हैं फॉर्मल सेक्टर से। लास्ट में है वर्कर सिटिंग, एक वो रजाई को सिल रहा है। डू यू थिंक ए बैंक विल गिव मी ए लोन, क्या बैंक इसको लोन देगा, सोच के आंसर लिखिए 5 o'clock तक। थैंक यू।